Hello everyone, I welcome you again to watch this channel. Beta, today we are going to discuss next topic, properties of colloidal salts or colloids. Properties हमें discuss करनी है बेटा colloids या colloidal salts की. तो there are different properties. We discuss these one by one बेटा. First property जो हम discuss करने जा रहे हैं यहाँ पर, that is mechanical properties. First type of properties we are going to discuss here, mechanical properties. Mechanical properties में जो हम main property हम यहाँ पर जो discuss करेंगे mechanical, under these mechanical properties बेटा, that is Brownian moment. Brownian moment is mechanical properties. Brownian moment. What do you mean by Brownian moment बेटा? Brownian moment. This Brownian moment was observed by Robert Brown in 1827 beta. Observed by Robert Brown, name of scientist, in 1827. क्या होता है Brownian moment बेटा? How we can define this Brownian moment? क्या इसका cause होगा, क्या इसकी इंपोर्टेंस होगी, ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है? तो जिगजैग मूवमेंट ऑफ क्लोइडल पार्टिकल्स इन द क्लोइडल सॉल्ट. क्या होगा बेटा? द जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, जिगजैग मूवमेंट ऑफ क्लोइडल पार्टिकल्स इन colloidal salt is called Brownian movement. Zigzag movement होगा, टेढ़ा मेढ़ा movement होगा. In this vessel, this is any vessel बेटा. इस vessel में this is any dispersion medium, and in this dispersion medium बेटा, these are the particles of dispersed phase. Suppose different particles. अब suppose ये जो particle है dispersed phase का particle, this particle बेटा, this move in this direction. First of all, यहाँ से ये ऐसे जा सकता है, then it comes in this direction, then it may come in this direction, then comes in this direction. Mean in this way, this zigzag movement of colloidal particles, ये टेढ़ा मेढ़ा चलता रहेगा. This zigzag movement of colloidal particles in the colloidal salt is called Brownian movement. अब क्या cause है? What is cause of this Brownian movement बेटा? क्या कोज है? क्यों ये जिगजैग, क्यों ये टेढ़े मेढ़े चलते हैं पार्टिकल्स? व्हाट इज द कोज ऑफ दिस ब्राउनियन मूवमेंट बेटा? एक्चुअली होता क्या है? पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज आर हेवियर इन नेचर. बिगर पार्टिकल्स होते हैं, बट द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम आर लाइटर पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम स्ट्राइक टू द पार्टिकल्स, these colloidal particles or particles of dispersed phase from all directions with a different force. डिफरेंट स्पीड से स्ट्राइक करेंगे फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस. व्हाट हैपेंस बेटा? डिफरेंट स्पीड से स्ट्राइक करेंगे. सपोज मैं कह रहा हूं बेटा, यहाँ पर पार्टिकल्स यहाँ से आए स्ट्राइक करते हुए, यहाँ से भी आ गए, यहाँ से भी आ गए, यहाँ से भी आ गए, यहाँ से भी आ गए और यहाँ से भी आया. ठीक है, बट इधर से ज्यादा पार्टिकल स्ट्राइक करके इधर से कम पार्टिकल, तो नेट फोर्स अप्लाइड किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में आ गया. तो ये पार्टिकल यहाँ मूव कर गया, यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर गया. ठीक है, फिर यहाँ से फर्दर पार्टिकल स्ट्राइक के फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, बट नेट फोर्स अप्लाई यहाँ पर होगा इस डायरेक्शन में. देन व्हाट हैपेंड बेटा? दिस पार्टिकल मूव दिस डायरेक्शन, यहाँ पर मूव कर जाएगी. आफ्टर दिस फोर्स फिर से पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन से स्ट्राइक करते हुए इसको, देन इट मूव इन दिस डायरेक्शन एंड सो ऑन. दिस मीन व्हाट इज कोज? क्या कोज का क्या रीजन बन रहा है यहाँ पर? क्या है इसका कोज भाई? द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम strike to colloidal particles. Then what happened beta? These colloidal particles move in the direction of net force applied, and this is the cause of the movement. Okay, well, fast moving. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाई होती है डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स की. Okay, when fast moving particles or molecules of dispersion medium strike to the dispersed phase particles, or we can say colloidal particles,
from all directions with different speeds. स्पीड तो डिफरेंट होगी, with different speeds. Then क्या होगा बेटा? Then the colloidal particles move in the direction of net force applied, and beta this is the cause of Brownian movement. This is the cause of Brownian movement. यही Brownian movement का cause बन गया बेटा. This is cause of Brownian movement. ये मेन cause हो गया बेटा Brownian movement का. इसकी वजह से पार्टिकल जिगजैग मोशन में मूव करेंगे, जिगजैग फ्लो में मूव करेंगे, इन डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे. ओके, नाउ अब इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है बेटा? What is importance of Brownian movement? Importance क्या इंपॉर्टेंस है Brownian movement की? What is importance of Brownian movement बेटा? क्या इंपॉर्टेंस होगी भाई? देखो ये पार्टिकल्स यहाँ पर देखो, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं ये सेटल डाउन नहीं हो रहे, यहाँ पर मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड्स, कहीं सेटल नहीं होंगे, इसी के अंदर ही सस्पेंड रहेंगे डिस्पर्सन मीडियम के अंदर. दीज पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स्ड और सस्पेंडेड इन दिस डिस्पर्सन मीडियम. मीन क्या है? जो ब्राउनियन मूवमेंट का प्रोसेस है बेटा, दिस ब्राउनियन मूवमेंट अपोजेस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अपोजेस ग्रेविटी फोर्स को क्या करता है बेटा? अपोज करता है. ये अपोजेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब उसको अपोज करेगा, उसकी वजह से क्या होगा फिर? ड्यू टू दिस these particles will not settle down नहीं होंगे, and this is the main and this gives stability to the colloidal soles. Colloidal sole भाई अगर पार्टिकल सेटल नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है? कोलोइडल फॉर्म में रहेगा, इसका मतलब कोलोइड्स है वो, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई उसकी. ओके, मीन ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट colloids become stable, it gives stability to the colloidal soles. ओके, तो क्या बोलेंगे? as Brownian movement opposes the force of gravity. ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या करते हैं बेटा? अपोज करती है. इसकी वजह से क्या होगा? सो इट डज नॉट अलाउ द colloidal particles to settle down. ये भी होगा फिर. सो इट डज नॉट अलाउ द colloidal particles to settle down. उनको सेटल नहीं होने देगा बेटा. अगर सेटल डाउन नहीं होने देगा तो व्हाट हैपन? ड्यू टू दिस colloidal sole becomes stable, hence it gives stability to the colloidal soles. मीन जो colloidal soles हैं, जो स्टेबिलिटी होती है बेटा, वो किसकी वजह से है? Brownian movement plays an important role in the stability of colloids. colloids की स्टेबिलिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. colloidal soles की रिस्पॉन्स की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इट गिव्स स्टेबिलिटी टू द colloidal sole, मीन और वी कैन से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ colloidal soles. ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ colloidal soles, ऐसे बोल दो चाहे. सो इट इज, ऐसे भी ठीक है, इट गिव्स स्टेबिलिटी टू द colloidal soles और colloidal soles, और वी कैन से और इट इज रिस्पॉन्सिबल, बात वही है बेटा, responsible for stability of colloidal soles. भाई जो colloidal soles की जो स्टेबिलिटी होती है, this Brownian movement is responsible, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, सो दिस इज Brownian movement मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गई बेटा यहाँ पर. ये नाउ सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा,
Optical properties. We are going to discuss optical properties. Second type of property. बर्नौली मोमेंट में क्या हुआ? जिगजैग मोमेंट है, जिगजैग मोमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। इसका कोज क्या हुआ? डिफरेंट एक्शन से जो पार्टिकल्स मूव करते हैं बेटा डिस्पर्स फेज के, डिस्पर्सन मीडियम विद हाई स्पीड, ये स्ट्राइक करेंगे टू द पार्टिकल। जो डिस्पर्स फेज में कोलोइडल पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगे एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंड बेटा? दे मूव इन डिफरेंट एक्शन। ये कोज हो गया इसका। इंपॉर्टेंस क्या हो गई बेटा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स और अट्रैक्शन को अपोज करती है। इसकी वजह से क्या होगा बेटा? कोलोइडल पार्टिकल्स को सेटल डाउन नहीं होने देगा, ये अलाउ नहीं करेगा टू सेटल डाउन द कोलोइडल पार्टिकल्स। सो दिस इज रिस्पांसिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द colloids, or you can say colloidal salts. So second type of property. Now we are going to discuss beta that is optical properties. Second type of properties we are going to discuss optical properties. Optical properties में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर Tyndall effect. We discuss Tyndall effect under these optical properties. Tyndall effect. आपने 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ Tyndall effect बेटा, है ना? 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ आपने Tyndall effect या नहीं? Optical properties. Optical properties. Optics were related to lights. सनलाइट से रिलेटेड होता है, लाइट से रिलेटेड होता है बेटा। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में जो हम मेन प्रॉपर्टी यहां डिस्कस करेंगे दैट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इज नेम ऑफ साइंटिस्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल क्या बेटा? नेम ऑफ साइंटिस्ट है। टिंडल ने दिया था ये बेटा। दिस प्रोसेस वाज ऑब्जर्व्ड बाय टिंडल इन 1869। 1869 में टिंडल ने इसको ऑब्जर्व किया था बेटा। ओके, दिस इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड बाय टिंडल इन 1869। टिंडल इफेक्ट नेम ऑफ साइंटिस्ट के नेम से ही इसका इफेक्ट का नेम पड़ा है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता है क्या है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। The scattering of light when it passes through colloidal soul, simple, is called Tyndall effect. क्या होगा भाई? The scattering of light when it passes through colloids or colloidal sols is called टिंडल इफेक्ट। इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलेंगे बेटा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, स्कैटर कर जाएगी लाइट when it passes through the colloidal soul, this in this way बेटा। suppose this is the colloidal soul, this is colloidal soul बेटा। पार्टिकल्स का साइज मैंने कहा था in colloidal rays the size of particle is large, that is 1 nanometer to 1000 nanometer होता है बेटा। now when we pass any light, इसमें से कोई भी लाइट हम पास करेंगे then This light strike to the colloidal particles, ये colloidal particles है, इनसे strike कर जाएगी बेटा and this light undergo scattering of light होगी। suppose ये light beam आई है, this light beam बेटा, ये light beam इसमें enter करेगी, जैसे जैसे strike करती जाएगी colloidal particles से scatter होती जाएगी। this scattering mean path of the light becomes visible। this path of the light become visible, this is called Tyndall effect। दिस इज टिंडल, फैल दे जाएगी। और एक सिंपल डे लाइफ का एग्जांपल मैं आपको याद दिला रहा हूँ। सपोज एक हम बंद कमरा ले लेते हैं, बिल्कुल बंद रूम है, सील कर दिया और उसको खिड़की दरवाजों पर जो खिड़की होती है, विंडो पेन्स होते हैं, इन पर बेटा हम ब्लैक चार्ट लगा देते हैं। ब्लैक, बिल्कुल डार्क रूम हो जाएगा। और उस डार्क रूम में हम एक होल छोड़ देते हैं, एक दीवार में एक ब्रिक निकाल देते हैं, वहां से एक ईंट निकाल देते हैं, एक होल रह जाएगा। व्हेन सन राइजेस इन द मॉर्निंग, सनराइज होगा उस टाइम पर आप देखना, उस रूम के अंदर बैठना और देखना, ऑब्जर्व करना। ओके, लाइट उस होल से एंटर करेगी, बिल्कुल छोटा सा साइज उस होल का, बट सामने वाली दीवार पर आप देखना बेटा पूरा बहुत बड़ा ज्यादा साइज आपको दिखाई देगा। लाइट बहुत ज्यादा एरिया में आपको दिखाई देगी। व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्या हो गया कि वो इतना ज्यादा एरिया कवर कर गई वहां से अपोजिट वॉल पर? क्यों हुआ ऐसा बेटा? व्हाई इट हैपेंस? इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग।
क्या होता है बेटा, एयर के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स आर देयर इन द एयर। ओके, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, जब लाइट आएगी उस होल से स्ट्राइक टू द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्कैटरिंग टेक्स प्लेस, स्कैटरिंग होती जाएगी एंड देन व्हाट हैपन बेटा, आगे आगे जैसे जैसे पार्टिकल्स की कांटेक्ट में आएगी, डस्ट पार्टिकल्स के कांटेक्ट में और ज्यादा स्कैटरिंग होगी एंड इट बिकम्स मोर एंड मोर एंड वी कैन से मोर एंड मोर स्कैटरिंग टेक्स प्लेस। तो लंबा चौड़ा एरिया कवर करेगी सामने वाले दीवार पर। मीन दिस इज द एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। डेली लाइफ का एग्जांपल है, आप किसी भी दिन चेक कर सकते हैं, कभी भी चेक कर सकते हैं, अपने घर में भी चेक कर सकते हैं आप बेटा। ओके, आपको पार्टिकल्स भी दिखाई देंगे जब वो लाइट आ रही होगी ना, उस एरिया में से आप कोई टॉवल वगैरह लेके ऐसे ऐसे हिलाना, यहाँ पर कमरे में ऐसे हिला देना उसको, डस्ट उठेंगे और पार्टिकल्स आपको ऐसे ऐसे हाई स्पीड से मूव करते हुए दिखाई देंगे। ओके, बिल्कुल आप ध्यान से देख सकते हैं, वहां पर उस टाइम पर आप देख सकते हैं। ओके, ऐसा भी दृश्य आप देख सकते हैं, यू कैन ऑब्जर्व दिस। ओके, तो दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट when it passes through colloidal sols is called Tyndall effect। इसको टिंडल इफेक्ट बोलेंगे बेटा। नाउ तो टिंडल इफेक्ट के लिए क्या कंडीशंस होंगी, कब ये ऑब्जर्व होगा। ओके, नाउ कंडीशंस व्हेन टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व, क्या कंडीशन है इसके लिए, कंडीशंस व्हेन टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। कौन कौन सी कंडीशंस है बेटा जब टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, जब हम ऑब्जर्व करेंगे इसको, क्या क्या कंडीशंस होंगी। एक तो भाई जो पार्टिकल का साइज है वो कंपेरेबल होना चाहिए, नॉट सो स्मॉल देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो लाइट हम पास कर रहे हैं उसके अंदर से, उस लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं होना, नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, या कंपेरेबल हो या थोड़ा बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत बड़ा हो उससे। ओके, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है भाई, स्पीड ब्रेकर होता है बेटा, हम रोड पर आ रहे हैं, बाइक या गाड़ी लेकर आए, हाई स्पीड से लेकर आए, अगर स्पीड ब्रेकर बिल्कुल थोड़ा सा है ना, ये रोड है बेटा, दिस ये स्पीड ब्रेकर है, बिल्कुल थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर है, सिंपल सा। ओके, बिल्कुल ये रोड है, ठीक है ना, इस पर ये जो स्पीड ब्रेकर बना रखा है बिल्कुल छोटा सा स्पीड ब्रेकर, व्हाट हैपन, गाड़ी आएगी इसके ऊपर से हाई स्पीड से चली जाएगी ऐसे। बट अगर आप बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बना दो, इसकी हाइट बहुत ज्यादा कर दो, आप इस स्पीड ब्रेकर की हाइट बहुत ज्यादा कर दो, देन व्हाट हैपन, ये गाड़ी जो व्हीकल आएगा यहाँ से बिल्कुल स्लो होना पड़ेगा इसको, देन इट विल क्रॉस दिस। अगर हाई स्पीड से आएगा, हाई स्पीड से आते ही गाड़ी के जो टायर है इसे स्ट्राइक करेंगे एंड इट गेट्स स्कैटर्ड, डिफरेंट डायरेक्शन में जाके गिरेगी, कहीं भी इधर उधर जाके गिर सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। मीन क्या है कि जब साइज बड़ा होगा, ब्रेकर का साइज बड़ा होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। मीन पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, और अगर पार्टिकल साइज डिक्रीज करते जाएंगे तो स्कैटरिंग भी कम होती जाएगी। सिंपल पॉइंट, डे लाइफ का एग्जांपल आप माइंड में सेट कर सकते हैं इसका याद रखने के लिए बेटा। ओके, तो कंडीशंस क्या होंगी, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी बेटा यहाँ पर कि द साइज ऑफ पार्टिकल शुड not much smaller than the wavelength of incident radiation। इंसिडेंट रेडिएशन है जो, उसके वेवलेंथ से बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए। ओके, फर्स्ट कंडीशन हम लिखेंगे द साइज ऑफ colloidal particles should not much smaller than the wavelength of light। जो लाइट आई है, रेडिएशन जो आई है, उसकी वेवलेंथ से बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, उससे कंपेरेबल हो सकता है, उससे थोड़ा बहुत बड़ा होना चाहिए बेटा, तब जाकर क्या होगा, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, conditions when Tyndall effect is observed क्या, first when the size of particles should not smaller or not smaller than the wavelength of light। अगर ये छोटा नहीं है बहुत ज्यादा तो Tyndall effect ऑब्जर्व हो सकता है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है बेटा, a large difference, if there is a large difference between the refractive indices जो होते हैं of dispersed phase and dispersion medium, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में कम डिफरेंस होगा तो कम स्कैटरिंग होगी, फिजिक्स अप्लाई होगी यहाँ पर। ओके, तो भाई इफ देयर इज
large difference in the refractive indices, प्लूरल में ले लिया हमने इंडेक्स को, refractive indices of dispersed phase and dispersion medium। भाई dispersed phase और dispersion medium के refractive index में ज्यादा डिफरेंस होगा तो we can say there will be Tyndall effect, ज्यादा अमाउंट में आपको Tyndall effect दिखाई देगा, more and more scattering होगी वहां पर। So these are the necessary and sufficient conditions for Tyndall effect। Tyndall effect ऑब्जर्व होगा, इसके लिए ये necessary and sufficient conditions होंगी बेटा। Now next property, third property बेटा we are going to discuss here, electrical properties। third type of property बेटा we are going to discuss now, electrical properties। electrical properties में चार्ज से रिलेटेड होंगे भाई, electrical properties चार्ज से रिलेटेड होंगे। electrical properties मीन जो colloidal particles होते हैं in these colloids, these are electrically charged। colloidal particles किसी भी colloidal solution के अंदर जो colloidal particles होते हैं बेटा, these are always electrically charged, either positively charged or negatively charged। So third type of properties we are going to discuss here beta, electrical properties। electrical properties बेटा, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, चार्ज से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट क्या होगा बेटा, colloidal particles are electrically charged। हम ये प्रूव करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल colloidal particles are electrically charged। colloidal particles are बेटा electrically charged, और electrically charged है अगेन बेटा, दिस इज द मेन कॉज ऑफ स्टेबिलिटी। यहां पर भी क्या होगा, स्टेबिलिटी देगा ये, स्टेबिलिटी ऑफ colloidal salts। ओके, क्यों, इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे तो सेम चार्ज के होंगे, हमने पेप्टाइजेशन में डिस्कस किया था। और रिपेल करेंगे तो सेटल डाउन नहीं होंगे, सस्पेंडेड रहेंगे, डिस्पर्स रहेंगे। अगेन हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ colloids, हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ colloids। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी स्टेबिलिटी ऑफ colloids में हेल्प करती हैं। ओके बेटा, एंड we can say this is also help in stability of colloids। ये भी colloids की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है बेटा कि colloidal particles are electrically charged in nature। okay, now how we can justify that these colloidal particles in the colloidal soul are electrically charged in nature? कैसे प्रूव कर सकते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं बेटा हम। सपोज हम कैसे, I take silver nitrate solution, aqueous solution of silver nitrate, okay, and we add potassium iodide solution, aqueous solution of potassium iodide in this। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन आप ऐड करोगे, देन व्हाट हैपेंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी भाई, पॉजिटिव नेगेटिव के पास नेगेटिव, पॉजिटिव के पास, Ag पर पॉजिटिव, नाइट्रेट पर नेगेटिव, पोटेशियम पर पॉजिटिव, आयोडाइड पर क्या आएगा, नेगेटिव। AgI बन जाएगा एंड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, AgI। सिल्वर आयोडाइड के PPT बन गए, सेटल डाउन हो जाएंगे बेटा, ये प्रेसिपिटेट बन गए, एंड प्लस KNO3 एक्वस, ये सॉल्युबल हो गया वाटर के अंदर। ये तो तब है रिएक्शन बेटा व्हेन वी मिक्स दीज टू सॉल्यूशंस इन द रेशियो ऑफ 1:1। इक्वल रेशियो में हमने ऐड कर दिया, इनको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर गए एक दूसरे को, ये रिएक्शन कर गए, डिस्प्लेसमेंट हो गए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई यहाँ पर। ओके, नाउ बट इफ दिस पोटेशियम आयोडाइड इज प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर हम इसको एक्सेस में ले लें भाई, देन व्हाट हैपेंस, अब colloids की तरफ मूव करेंगे हम, यहाँ पर colloidal solution की तरफ मूव करेंगे हम। यहाँ पर देखो, मीन इफ this electrolyte is present in excess, इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर अगर ये एक्सेस में डाल दे, व्हाट हैपेंस बेटा, देखो फ्रेश पीपीटी बन चुका है, उसको क्या मिल गया अभी, इलेक्ट्रोलाइट। अब एक्सेस ऑफ KI डालेंगे, एक्सेस ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। किसका काम करेगा बेटा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। फ्रेश पीपीटी है, डिस्पर्सन मीडियम तो ले रखा वाटर के अंदर है ये, और इलेक्ट्रोलाइट भी डाल दिया, क्या हो जाएगा, पेप्टाइजेशन।
क्या फ्रेश पीपीटी विल कन्वर्ट इन क्लोइडल पार्टिकल्स। कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। ये जो बेटा सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल डिफरेंट पार्टिकल्स, मैंने तो इसको बैलेंस करने के लिए लिखा था AgI एक, है ना। अब मैं सोल्यूशन में ले रहा हूं यहाँ पर सपोज, अब मैं मिक्सर में ले रहा हूं यहाँ पर सपोज, तो लार्ज नंबर ऑफ precipitates are there, particles are there of silver iodide. What happens बेटा, common ions get adsorbed over the surface. इनके सरफेस पर क्या बन जाएंगे बेटा, कॉमन आयंस। क्या कॉमन आयन, इस आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड के साथ इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या कॉमन है, आयोडाइड आयन कॉमन है, तो कॉमन आयंस गेट एडसॉर्ब ओवर द सरफेस। आप सिंगल इसी के साथ लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, आगे दिखा देंगे इसको। ओके, AgI I नेगेटिव मीन these common ions get adsorbed over the surface, तो जो colloidal particles बने these are negatively charged colloidal particle। कैसे बनते बेटा, negatively charged colloidal particles। ये जो पार्टिकल्स बन गए बेटा यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन की क्या है कि रिएक्शन होते ही व्हाट हैपन बेटा, AgI सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे, these precipitates of silver iodide and then potassium nitrate is formed। potassium nitrate तो बेटा soluble है water के अंदर। okay, now but what happens when we take this potassium iodide in excess, then this potassium iodide acts as electrolyte for these particles, for these fresh precipitates, and then what happens, common ions get adsorbed over their surface। जैसे common ion adsorb होंगे these particles become negatively charged। यहाँ पर क्यों, आयोडाइड आयन आएगा कॉमन आयन इसके साथ, आयोडाइड एडसॉर्ब हो गया, नेगेटिवली चार्ज क्लोइडल पार्टिकल्स बन गए। इसी तरह मैं बोला था एक ही चार्ज के नहीं, दोनों चार्ज के हो सकते हैं। कैसे, अब अगर इसको हम रिवर्स करते हैं, है ना, रिवर्स कर देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने, अब सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं। इसी को रिवर्स करता हूं कि मैंने पोटेशियम आयोडाइड बीकर में ले लिया, ओके, एक्वा सॉल्यूशन, और इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना स्टार्ट कर दिया इन स्मॉल लॉट्स, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में इसको ऐड करते गए। इनिशियली तो क्या होगा भाई, फिर से वही डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर से AgI बनेंगे, पीपीटी प्रेसिपिटेट बन गए AgI के, ओके, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस, वही रिएक्शन जो ऊपर हुई थी, कोई दिक्कत नहीं। बट चेंज कब आएगा, चेंज तब आएगा अगर हम अब की बार इस पोटेशियम इस सिल्वर नाइट्रेट को एक्सेस में लें। ओके, इफ दिस इज प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर ये एक्सेस में है देन इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कॉमन आयन एडसॉर्ब होंगे। अब की बार इस फ्रेश प्रेसिपिटेट और इस इलेक्ट्रोलाइट को चेक करो अब आप AgNO3 के साथ, कॉमन आयन क्या है इनके अंदर, Ag सिल्वर कॉमन आयन, तो कॉमन आयंस गेट एडसॉर्ब ओवर द सरफेस दिस टाइम when this silver nitrate is present in excess, Ag ions, silver ions get adsorbed over the surface over these particles, and the particles जो बने यहाँ पर जो colloidal particles, these are positively charged। कैसे बन गए बेटा यहाँ पर ये positively charged colloidal particles, these become positively charged colloidal particles, positively charged colloidal particles। तो यहाँ से हम जस्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, दिस इज जस्टिफाइड दैट द colloidal particles are electrically charged in nature, either positively charged or negatively charged। ओके बेटा, आ गया समझ में अच्छी तरह, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। नाउ तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज colloidal particles are electrically charged in nature। अब इसी में ही, इसी से रिलेटेड ही हमें एक और पॉइंट डिस्कस करना। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल, मैं ये पार्टिकल्स कंसीडर करूंगा, रिएक्शन रन कर देता हूँ। ओके, colloidal particles हैं ये सपोज, these are the negatively charged colloidal particles and बेटा these are the positively charged colloidal particles, ये है सपोज। ओके, अब ये डिफरेंट colloidal particles हैं AgI in the solution this। ओके, नाउ तो इनके सरफेस पर क्या एडसॉर्ब हो जाएंगे यहाँ पर, आयोडाइड। ओके, ये एग्जांपल लिया पहले मैंने, ये आयोडाइड कहां से आए थे, पोटेशियम आयोडाइड से आए थे, KI से। ये जो एक लेयर बनी यहाँ पर, दिस लेयर ऑफ आयोडाइड आयंस और दिस प्रेसिपिटेट, दिस इज फिक्स्ड लेयर। कौन सी लेयर होगी बेटा, ये फिक्स्ड लेयर होगी। अब इस फिक्स्ड, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिवली चार्ज आयन को। पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या थे, पोटेशियम आयन थे। जो पोटेशियम आयन है यहाँ पर इसके अंदर, दे एडसॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ दिस पार्टिकल्स अगेन, सेकेंडरी लेयर बन जाएगी, एंड दिस सेकेंडरी लेयर इज कॉल्ड डिफ्यूज लेयर। इस लेयर को हम डिफ्यूज कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, डिफ्यूज का मतलब
कोई अनदर आयन इनको रिप्लेस कर सकता है, ये रिप्लेस नहीं हो सकते, ये रिप्लेस हो सकते हैं। सो दिस इज डिफ्यूज लेयर, सो दिस इज डिफ्यूज मीन कोई अनदर इलेक्ट्रोलाइट हम डाल दें इसके अंदर, अनदर इलेक्ट्रोलाइट हम डाल दें तो उस इलेक्ट्रोलाइट के जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो इनको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज लेयर। सेकेंडरी लेयर है, ये प्राइमरी लेयर है, जो प्राइमरी लेयर इज फिक्स्ड लेयर। अब बेटा फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में यहाँ पर एट दिस इंटरफेस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप। दिस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है यहाँ पर, दिस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और वी कैन से जेटा पोटेंशियल। डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन करनी, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल क्या होती है ये इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल। व्हाट डू मीन बाय दिस? क्या होगा बेटा? द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन किस किस के बीच में? फिक्स्ड लेयर, सेटअप बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, fixed layer and diffused layer is called electrokinetic potential और जेटा पोटेंशियल। फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल। दूसरा एग्जांपल आप ये ले लेते हैं, सपोज एजीआई वाला सेकंड रिएक्शन हमने ली थी, वहां से इनके सरफेस पर एजी आयंस, यहाँ पर कौन से नाइट्रेट आयन आ जाएंगे, यहाँ पर ये नाइट्रेट आयंस। ये कौन सी है? फिक्स्ड लेयर है। ये कौन सी है? डिफ्यूज लेयर है। ओके, फिक्स्ड लेयर डिफ्यूज लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा बेटा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम यहाँ पर? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल हम इसको बोल सकते हैं। नाउ अंडर दिस electrical properties beta, next type of property we can discuss here, that is electrophoresis or cataphoresis. Next property we are going to discuss now, electrophoresis or cataphoresis। electrophoresis और cataphoresis क्या होता है? electrophoresis और cataphoresis, what do you mean by this? beta electro what is related to electric fields है ना। फोरेसिस का मीनिंग क्या होगा? मूवमेंट। इलेक्ट्रो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोरेसिस में मूवमेंट। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी अंडर द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस और वी कैन से कैटाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। If you dissociate this one in two parts, electro related to electric fields, electric field, external electric field होगा। और फोरेसिस का मीनिंग क्या होगा? मूवमेंट। किसका मूवमेंट होगा बेटा? कोलोइडल सोल्स में कोलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। तो द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड्स, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी प्रेजेंस में जो कोलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा बेटा, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स किसकी तरफ? ऑपोजिटिवली चार्ज्ड electrodes in the presence of external applied, external electric field बोल देते हैं, external electric field is called electrophoresis or cataphoresis। in the presence of simple electric field बोलोगे तो भी ठीक है। ओके, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स होगा तो अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे? फॉर दिस बेटा यू कैन टेक ए यू शेप apparatus। यू शेप apparatus ले लिया बेटा हमने, दिस इज यू शेप apparatus। इन दिस यू शेप apparatus बेटा वी एडजस्ट टू इलेक्ट्रोड्स, ये दो इलेक्ट्रोड हम एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर। दीज आर द टू इलेक्ट्रोड्स बेटा,
ये इलेक्ट्रॉन्स हमने सेट कर दिए यहाँ पर, ओके। दिस सर्किट बना दिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। की लगा दी यहाँ पर, दिस बैटरी होगी, दिस इज की, एंड ये सर्किट कंप्लीट हो गया। दिस वन नेगेटिव पॉजिटिव। तो चार्जेस कैसे आते हैं, बैटरी के जिस पोल से जो इलेक्ट्रॉन लिंक होता है उस पर वैसे चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा, ओके। नाउ इसको हमने फिल कर दिया, वी फिल दिस विद कोलॉइडल सॉल्ट। इस यू शेप ट्यूब को फिल कर दिया बेटा हमने विद कोलॉइडल सॉल्ट। ये कोलॉइडल सॉल्ट से हमने फिल कर दिया इसको बेटा, दिस वन, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, जबकि इसके अंदर आप डालोगे सर्किट कंप्लीट होगा एंड करंट स्टार्ट मूविंग, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट मूविंग। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट हैपन बेटा, सर्किट कंप्लीट होते ही द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इन अपोजिटिवली चार्ज डायरेक्शन। अब पार्टिकल्स हम अज्यूम कर लेते हैं बेटा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। दीज आर द पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं जो मैं डॉट्स लगा रहा हूं अभी। दीज आर द कोलॉइडल पार्टिकल्स फॉर्म्स इन दिस कोलॉइडल सॉल्ट। ये कोलॉइडल पार्टिकल्स स्कैटरिंग हो चुकी है इनकी, ये स्कैटर्ड है यहाँ पर, ये डिस्पर्स्ड है यहाँ पर, नॉट स्कैटर्ड, डिस्पर्स्ड है यहाँ पर, ओके। नाउ दिस इज बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने रिप्रेजेंट किया है। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी, की इसके अंदर डालेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा, व्हाट हैपेंस बेटा, अब एक दिस इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अज्यूम कर लिया हमने कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल पर चार्ज कैसे अज्यूम कर ले, कोई तो अज्यूम करके चलना पड़ेगा आपको, या तो नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज, कोई एक आपको अज्यूम करना है, क्योंकि कोई ना कोई चार्ज तो होगा ही होगा। हमने इससे पिछली प्रॉपर्टी में डिस्कस किया बेटा, ओके। नाउ तो व्हाट हैपेंस when circuit is completed, these colloidal particles start moving in opposite direction, start moving towards oppositively charged electrodes. ये जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं, these particles start moving towards oppositively charged electrode. इसकी तरफ मूव करेंगे, क्यों, नेगेटिव चार्ज सर्किट कंप्लीट तो किसकी तरफ जाएंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज कौन सा, पॉजिटिव पोल की तरफ जाएंगे, इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए। तो these colloidal particles start moving in opposite और start moving towards oppositively charged electrons. ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो गया इनका। This all these particles get absorbed, इसके ऊपर आके एडजॉर्ब इकट्ठे हो गए, यहाँ पर एडजॉर्ब हो गए बेटा, इसके तरफ मूव कर गए। दिस मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसी को क्या बोलते हैं हम, कैटाफोरेसिस। ओके बेटा, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वेरी इजी डेफिनेशन। Now, next property we are going to discuss here. Third property beta, that is coagulation or precipitation. Coagulation or precipitation. ठीक है? Next, third property, coagulation or precipitation. Under electrical properties beta, we are going to discuss next property, that is coagulation or precipitation. Coagulation में coagulate होंगे, aggregate होंगे particles. Okay? सेटल डाउन हो जाएंगे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा कोएगुलेशन, कोएगुलेशन और वी कैन से प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन द कोलॉइडल पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ओके, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स इज कॉल्ड कोएगुलेशन। क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ settling down, the process of settling down the colloidal particles, the process of settling down the colloidal particles in the presence of suitable electrolytes in the form of precipitates in the presence of suitable electrolytes। सीधा लिख सकते हैं in the presence of, सेटल डाउन हो रहे हैं इसका मतलब पीपीटी में कन्वर्ट हो गए, in the presence of suitable electrolytes, suitable electrolyte is called coagulation or we can say precipitation। But
टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहां पर बताऊंगा बेटा, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस। क्या भाई, अगर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, इफ इट्स लो अमाउंट और स्मॉल अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर कोएगुलेशन, फॉर प्रेसिपिटेशन, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन। ओके, फ्लोकुलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। इन दैट केस, इफ लेस अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस precipitation or for settling down, then this process is called flocculation. इस टाइप में इसको flocculation बोलेंगे। ओके, if less amount is needed, less amount of electrolyte is needed, less amount of electrolyte is needed for settling down the colloidal particles। अगर स्मॉल अमाउंट चाहिए आपको, लेस अमाउंट चाहिए आपको, और वी कैन से स्मॉल अमाउंट चाहिए आपको। ओके बेटा, स्मॉल अमाउंट के लिए हम क्या बोलेंगे बेटा, दैट दिस इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन। स्मॉल वर्ड वो ठीक रहेगा, यहां पर बेटर रहेगा। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड फॉर सेटलिंग डाउन द colloidal particles, then this is called, or this process is called flocculation। कोएगुलेशन का ही दूसरा नाम है फ्लोकुलेशन। बट कब बोलेंगे हम फ्लोकुलेशन? व्हाट डू मीन बाय फ्लोकुलेशन? व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड फॉर द कोएगुलेशन, means settling down of the colloidal particles in small amount of suitable electrolyte, that is called flocculation। but अगर अमाउंट ज्यादा चाहिए, लार्ज अमाउंट चाहिए, but if large amount of electrolyte is needed, large amount, but if large amount of electrolyte is needed beta, is needed, then दिस इज कॉल्ड, उस टाइम पर हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड कोएगुलेशन। तो ये छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूं मैं। वैसे इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी कैन यूज दिस कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, प्रेसिपिटेशन विदाउट एनी डिफरेंस, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देयर इज डिफरेंस। क्या फ्लोकुलेशन में लेस अमाउंट चाहिएगी इलेक्ट्रोलाइट की, लेस अमाउंट इज नीडेड, स्मॉल अमाउंट इज नीडेड। बट अगर कोएगुलेशन होता है तो बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड, लार्ज अमाउंट इज रिक्वायर्ड। अगर फ्लोकुलेशन है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड और नीडेड। ओके, नाउ इसी में एक और पॉइंट भाई, व्हाट डू मीन बाय कोएगुलेशन वैल्यू? कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है? इसी के अंदर ही नेक्स्ट डेफिनेशन, इसी प्रोसेस के अंदर हम नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। व्हाट डू मीन बाय कोएगुलेशन वैल्यू? कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है भाई? जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं फॉर द कोएगुलेशन, इस इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट होती है, कितनी अमाउंट चाहिए फॉर कंप्लीट कोएगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, 1 लीटर ऑफ द कोलोइडल सॉल्ट इज कॉल्ड कोएगुलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है? मिली मोल्स में कंसीडर करते हैं। द मिनिमम अमाउंट, भाई ज्यादा तो कितनी डाल दो, द मिनिमम अमाउंट किसमें चाहिए हमें? इन मिलीमोल्स, मिलीमोल्स में मेजर करनी है। द मिनिमम अमाउंट मिलीमोल्स में चाहिए ऑफ द सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ द सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट और ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड to bring about complete coagulation of 1 liter of the colloidal salt. 1 liter of the colloidal salt is called coagulation value. Minimum amount of the suitable electrolyte required to bring about complete coagulation of कितना? 1 liter of the colloidal salt is called coagulation value.
किस में मेजर की जाती है कोएगुलेशन वैल्यू? मिलीमोल्स में, ग्राम किलोग्राम में नहीं, मिलीमोल्स में मेजर करेंगे। इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर मिलीमोल्स में हम इसको मेजर करेंगे बेटा। तो 1 लीटर कोलोइडल सॉल्ट को कंप्लीटली कोएगुलेट करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हमें चाहिए, दैट इज कॉल्ड बेटा कोएगुलेशन वैल्यू। हम उसे कोएगुलेशन वैल्यू बोलेंगे। अब इसी के अंडर, इसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंडर ही नेक्स्ट एक और पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक रूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। दैट रूल इज कॉल्ड हार्डे-स्कल्स लॉ। हार्डे-स्कल्स लॉ इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा। हार्डे-स्कल्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर रिलेटेड टू दिस लॉ। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो कोएगुलेशन हो रहा था, कोएगुलेशन के बारे में ही बताएगा ये। ओके, हार्डे-स्कल्स लॉ क्या होता है? हार्डे-स्कल्स लॉ। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस लॉ आर 2 मेन पॉइंट्स, और वी कैन से मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लॉ आर, 2 ही मेन पॉइंट है इसके बेटा। मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लॉ आर क्या हुए? फर्स्ट बेटा, जो कोएगुलेशन होता है जब कोलोइडल पार्टिकल्स का इन द कोलोइडल सॉल्ट, किसकी प्रेजेंस में होता है? इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रोलाइट में से क्या, इलेक्ट्रोलाइट जो हमने ऐड किया बेटा, उसमें तो दोनों टाइप के आयन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपने NaCl ऐड कर दिया, आपने इलेक्ट्रोलाइट, आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड कर दिया, आपने पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड कर दिया। सभी में क्या है, कोई भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसमें दोनों टाइप के आयन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज। तो ये लो क्या बताता है भाई कि जो आयन्स इलेक्ट्रोलाइट के हेल्पफुल होंगे इन द कोएगुलेशन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स, these ions are called coagulating ions. इन ions को क्या बोलेंगे? coagulating ions। और वो कौन से ions होंगे? which have opposite charge than that of the colloidal particles। तो फर्स्ट क्या होगा? the ions of electrolyte which are helpful in coagulation of the colloidal particles are those which have opposite charge than that of the colloidal particles। are those क्या है? the ions of electrolyte which are helpful for or helpful in coagulation of the colloidal particles are those which have opposite charge than that of colloidal particles। colloidal particles से जिनका अपोजिट चार्ज होगा। ओके, the ions of electrolyte which are helpful in coagulation of the colloidal particles are those which have opposite charge than that of the colloidal particles and called, इनको क्या बोलेंगे? coagulating ions। इन ions को बेटा हम coagulating ions बोलेंगे। these ions are called coagulating ions। अगर colloidal charge पॉजिटिवली चार्ज है, अगर कोलोइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट में से नेगेटिवली चार्ज आयन देखने हैं, वो हेल्पफुल होंगे कोएगुलेशन में। अगर कोलोइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज है, तो आपको बेटा इलेक्ट्रोलाइट में से पॉजिटिवली चार्ज आयन देखने हैं, वो हेल्पफुल होंगे। मीन पॉजिटिवली चार्ज आयन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर हेल्पफुल इन कोएगुलेशन एंड दीज आर कॉल्ड कोएगुलेटिंग आयंस। सेकंड पॉइंट, more the valency of coagulating ions or more the charge present, magnitude of charge present on the coagulating ions, क्या है? more the valency of coagulating ions। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं और more the magnitude of charge present on coagulating ions, present on coagulating ions, more will be, more is the coagulation। उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा? कोएगुलेशन होगा।
मीन कोएगुलेशन किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयंस। ओके, मीन a positively charged ion से a positively charged ion then that of the colloidal particles, उन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा आप माइंड में रखना वही उतना ही ज्यादा कोएगुलेशन में हेल्पफुल होंगे। ओके, यहां से ये 2 पॉइंट है इस लो के, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बनता है यहां से इस लो से रिलेटेड कि यू हैव, सपोज मैं ले लेता हूं आर्सेनिक सल्फाइड As2S3 नेगेटिव चार्ज सोल है, As2S3 सल्फाइड आयंस गेट एब्जॉर्ब ओवर द सरफेस, ये सल्फाइड आयन इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं बेटा। सपोज दिस इज नेगेटिवली चार्ज सोल, As2S3 नेगेटिवली सोल है, नेगेटिवली चार्ज सोल, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है, ये मैंने बता दिया आपको नेगेटिव चार्ज है। यह दिस आर्सेनिक सल्फाइड सोल, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, which is the most effective electrolyte for its coagulation। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया बेटा इसके कोएगुलेशन के लिए, विच इज मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपको दे दिए जाएंगे, सपोज मैं फर्स्ट दे देता हूं यहां पर K4FeCN6, या फिर मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं पहले, है ना, इसको नेक्स्ट केस में ले लेंगे। सपोज मैं ले लेता हूं एग्जांपल बेटा AlCl3, सेकेंड एग्जांपल ले लिया बेटा मैंने सोडियम सल्फेट Na2SO4, थर्ड केस में एग्जांपल ले लिया बेटा मैंने यहाँ पर NaCl, सपोज ये लो जी। चेक हियर, क्लोराइड पार्टिकल्स कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड। ये इलेक्ट्रोलाइट में से कौन से आयंस हेल्पफुल होंगे कोएगुलेशन में? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन का टोटल मैग्नीट्यूड चेक कर लो चार्ज का, जिसका ज्यादा होगा वही मोस्ट इफेक्टिव होगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज आयन क्या है? एल्यूमिनियम आयन क्या होगा? Al3 पॉजिटिव। इसमें सोडियम आयन 1 पॉजिटिव, तो 2 है तो 2 पॉजिटिव हो गया टोटल। इसमें 1 सोडियम आयन 1 पॉजिटिव। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड किस केस में है? एल्यूमिनियम में है पॉजिटिव चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन में पर जो चार्ज है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड किस में है? AlCl3 में। सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट। ये जल्दी से कोएगुलेशन कराएगा, कोएगुलेटिंग पावर इसकी मैक्सिमम होगी एंड इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन कोएगुलेशन ऑफ दिस कोलोइडल सोल। पॉइंट आया समझ में बेटा आपको यहाँ से? इसी तरह मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं बेटा यहाँ से, इससे रिलेटेड वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू टेक हियर, दैट इज सपोज यू हैव फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है आपके पास, फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज सोल ले लिया। सपोज यू हैव पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, सपोज यू हैव पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, ओके, you have ferric hydroxide FeOH whole thrice Fe3 पॉजिटिव। कैसा ये? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है ये भाई, ओके, विच इज मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट to bring about its coagulation। मोस्ट इफेक्टिव कौन सा होगा? मैं आपको दे देता हूं एग्जांपल K4FeCN6 ले लिया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड दिस। सेकंड में ले लेता हूं बेटा सपोज ये ले लिया हमने AlCl3 ले लिया बेटा। थर्ड MgCl2 ले लेता हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेता हूं, ठीक है ना। एंड फोर्थ सपोज मैंने ले लिया ये NaCl, ये 4 इलेक्ट्रोलाइट्स हमने ले लिए, ओके। हमसे पूछा जा रहा है कि विच इज मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट फॉर इट्स कोएगुलेशन, टू ब्रिंग अबाउट इट्स कोएगुलेशन। अब ये देखो इस सोल में पार्टिकल्स पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज तो इस जो इलेक्ट्रोलाइट हमको देख रहे हैं इनमें से नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर हेल्पफुल इन कोएगुलेशन। नेगेटिवली चार्ज आयन देख लो बेटा सभी में, इसमें क्या है के पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव, 4 है तो 4 पॉजिटिव, टोटल पे कितना हो जाएगा? FeCN4 पर कितना हो गया? 4 नेगेटिव। K4FeCN6 था ये, K4FeCN6 था, नॉट 4।
दिस पोटेशियम फेरोसाइनाइड K for Fe6 था। ओके बेटा, इस पर क्या आ गया 4 नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर। ओके, नेगेटिव चार्ज है इनमें। Cl नेगेटिव 3 कितने हैं 3Cl टोटल 3 नेगेटिव हो गया। इसमें 2Cl नेगेटिव है, इसमें 1 क्लोराइड आयन है 1 नेगेटिव चार्ज। मेन मैग्नीट्यूड देखें, अगर अपोजिट चार्जेस का वैलेंसी चेक करें आप या मैग्नीट्यूड देखो, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड चार्ज इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड में है। सो दिस इज मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट टू ब्रिंग अबाउट इट्स कोएगुलेशन। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थोड़ा सा एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं क्या क्या डिस्कस किया हमने आज। प्रॉपर्टी डिस्कस की है। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हमने डिस्कस किया बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ब्राउनिंग मूवमेंट डिस्कस किया है। सेकंड हमने फिर बेटा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया हमने, टिंडल इफेक्ट डिस्कस किया। देन बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। इलेक्ट्रिकल में हमने बेटा चार्ज डिस्कस किया कि these covalent particles are electrically charged, either positively charged or negatively charged। ठीक है बेटा, फिर हमने इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस डिस्कस किया। उसमें फिर हमने यहाँ पर जेटा पोटेंशियल भी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ओके, देन हमने डिस्कस किया बेटा कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन और वी कैन से फ्लोकुलेशन। देन कोएगुलेशन वैल्यू डिस्कस की बेटा हमने यहाँ पर। तो ये और लास्ट में हमने हार्डे-स्कल्स लॉ डिस्कस किया यहाँ पर। ओके, तो ये सभी प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छी तरह आपको आनी चाहिए। डिफाइन करनी आती है 100%, एक या दो प्रॉपर्टी यहाँ से इस टॉपिक से। ओके, तो थैंक्स अगेन। आई वांट टू टेल यू बेटा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड ऑल्सो गिव योर कमेंट्स ऑल्सो। अच्छे अच्छे कमेंट जरूर देने। थैंक्स अ लॉट।